All right, brand new team. Modi checks in after taking oath yesterday. Ministers starting to take charge of their office. The newly appointed IMB and Sports Minister Anurag Thakur was the first to take charge. He was followed by Ashwini Vaishnav, who takes charge of two key ministries, the Railways and the IT Ministry. Kiran Rijiju assumed office as the Law Minister. He was earlier Sports Minister. Mansukh Mandavia, who will be spearheading India's COVID fight, took charge as the Health Minister. Hardeep Singh Puri assumed office as Oil Minister. Some new ministers met with BJP President JP Nadda as well at his residence today. Thank you very much. What I'm saying is, whatever charge comes to us, whatever responsibility is assigned, we have to discharge it with full commitment. We are collective, people working together as a team. So these are collective responsibilities. As a member of the Council of Ministers, we all are part of the same team. सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या-क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मेहनत, मशक्कत और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। Today is the first day for me to take charge here as the Minister of State, and I hope to work hard to meet the expectations that the Prime Minister has of me and the ministry. How do you plan to kind of take things forward? I think it's too early for me to start talking about plans and things like that. Today is the first day for me just to come here and familiarize myself with the ministry and the team that is working here. They've been doing a very good job so far, and I just want to meet them today. We have many more days left for me to unveil my ideas and my thoughts and the team's ideas and thoughts. मोदी जी का आदेश पर जो भी टूरिज्म का हो, कल्चर का हो, जो काम हो वो पूरा काम करेंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि लोगों को चॉइस होगा, कंज्यूमर को चॉइस होगा। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन को डी लाइसेंस करने वाले हैं। चॉइस यह होगा कि साहब ठीक है, आप बढ़िया हमको सप्लाई नहीं देते हैं, ये फलाना कंपनी बढ़िया सप्लाई नहीं देते हैं, ये बढ़िया सप्लाई दे रहा है, हम नहीं लेंगे आपसे। ये मोबाइल नंबर जैसे बदलते हैं या मोबाइल कंपनी बदलते हैं वैसे ये। I have to thank the Honorable Prime Minister for having entrusted me in the responsibility of this important department of Earth Sciences, which is an upcoming department and making a lot of new scientific breakthroughs and strides. Now we see Nari Shakti in full display in Prime Minister Modi's new cabinet. After last evening's mega rejig, the representation of women in Prime Minister Modi's cabinet has increased from 5 to 11. It is the highest number of women ministers in the union government since 2004. This comes after as many as 7 new women ministers were inducted into the cabinet yesterday. Some of them have begun taking charge after the oath-taking ceremony last evening. The first to assume office here was Minister of State for External Affairs, Meenakshi Lekhi, followed by Bharti Pawar, who is the Minister of State for Health. हर चीज़ के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग
सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है। महिला सशक्तिकरण का बात भाषण नहीं है, ये करने वाला बात है। इसलिए मोदी जी महिला मंत्रिमंडल बनाया, पार्टी में दायित्व देने का वादा किया, ऐसे अभी भी काम कर रहे हैं। 11 मंत्री हम मंत्रिमंडल में है, इसमें बड़ा बड़ा दायित्व दिलवाया। फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सभी बड़ा मंत्रिमंडल, मुझे तो किसान मंत्रालय दिया है। ऐसे अच्छा काम करने वाले को अच्छा दायित्व देके वो काम करने का सीखना है, मोदी जी से सीखना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं और उनका विश्वास है कोरोना के हारने के लिए हम सभी टीम वर्क मिलकर काम करेंगे और वैक्सीनेशन एक अच्छी तरह से पहुंच रहा है। तीसरी लहर से बचने के लिए आपका एडवाइस, तीसरी लहर से बचना, भारतीय जी हमारे साथ में है। की पूरी सुरक्षितता की पूरी जिम्मेवारी हम खुद ने ही उठानी है, खुद ही हम अपने खुद को सुरक्षित करें और लापरवाही बिल्कुल नहीं। Now, as Prime Minister Modi's big cabinet rejig comes with a major change.